all, let us understand what is the difference between gender and sex. It is a very common mistake to interchangeably use them, but there is a very, very strong, stark difference between these two things. And as a sociology student, you should know it. There's a high probability that they, the UPSC interview panel or mains checkers, they take it for granted that you, as an aware, serious candidate, should know the difference between gender and sex. तो देखो, sex is a biological term. When you are born, the doctor who operated you, he tells you, looking at your physical, your biology, your physical appearances, whether you are a male or a female. ठीक है? So this is directly related to the number of chromosomes. This is directly related to your biology. Whether when you grow up, you will be developing female organs or male organs. Do you have from birth, do you have male organs or female organs? तो यहाँ पे हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं. We are not concerned with how they dress up. We are not concerned with whether they are wearing skirt or jeans. Just only and only thing we are talking about is the biology, the organs, whether they have female organs or the male organs. On the other hand, gender, when we talk about gender, we are talking about cultural differences and social differences created by society based on whether you are a male or a female. So a male person is supposed to wear trousers in school. A female is a biology. But when we ask a female to wear skirt in school or salwar kameez in school, we are creating cultural differences between male and female. We are creating social differences. And this is called gender inequality. This is called gendered differences. So whatever we impose as society, the norms, the values, these are called gender. ठीक है? तो इसमें आपका क्या आ गया? इसमें आपकी आ गई यूनिफॉर्म आ गई. इसमें पिंक और ब्लू का कॉन्सेप्ट आ जाता है. पिंक जनरली इज यूज्ड फॉर फीमेल्स and blue is used for males. That is also a gendered concept. The concept of pink and blue. और यहाँ पे क्या लोगे? Females are not allowed in combat roles in defense. Males are allowed. तो आपके jobs, the differentiation among jobs, what kind of jobs a female should be doing and what kind of jobs a male should be doing, that is also based on your societal values. इसमें और क्या आ जाता है? इसमें up till few hundred years back or few decades back, females, they were not allowed to be part of बारात. बारात में सिर्फ मेल्स जाएंगे, फीमेल्स नहीं जाएंगे. So any kind of religious rituals also where the difference is created between males and females, that these differences are created by society. Organs were given by nature, but the differences based on male and female organs, they were created by society. So ये जो societal differences हैं, these are called gender differences. ठीक है? तो I hope the concept is as of now clear to you. और भी कोई चीजें ले लो कि females are expected to be, thin and beautiful, fair and shorter than women, or you can say guys prefer shorter women. On the other hand, males, they are expected to be muscular, they are expected to be tall, dark, and they are expected to be taller than women.
ठीक है, मूवीज में आप देखो, सुष्मिता सेन वॉज अ टॉल वुमन, बट शी कुड नॉट बी सक्सेसफुल, एंड the one of the reasons she could not be a successful heroine was because she was very tall. So she could not get heroes who were equal to her height or taller than her height. ये problems थी. The movies she did with Salman Khan, where it is said that Salman Khan had to stand on a pedestal to match her height. So these were the difficulties we face. So नेचर ने हमारे सिर्फ ऑर्गन्स बदले थे, बट उसके ऊपर जो इम्पोजिशंस हमने सोसाइटी करी हैं, दीज आर वे बियॉन्ड व्हाट डिफरेंसेस नेचर क्रिएटेड. नेचर ने बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट करे थे, बट हमने उसको इतना एग्जैजरेट करके, हमने उसको बढ़ा चढ़ा के. डाउरी का सिस्टम देख लो, ठीक है, डाउरी सिस्टम इज ऑल्सो मेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. हियर फीमेल विल गिव डाउरी टू मेल. वाई सो? उसके पीछे भी पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो हमने खुद क्रिएट करी हैं. उसका हमारी बायोलॉजी से लिंक तो है. मेल को प्रिविलेज दी गई है, फीमेल को नहीं दी गई है, पर उसका कोई लॉजिकल लिंक नहीं है. ठीक है, मेल के मेल ऑर्गन्स, फीमेल के फीमेल ऑर्गन्स, तो हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि certain things will be done by female, certain things in our society will be done by male, and these are gendered divisions. These are gender division of labor. नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि अब आपको, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर इज क्लियर टू यू व्हेन यू फिल यूपीएससी फॉर्म. ठीक है, वहां पे भी इफ इट इज रिटन जेंडर, इट इज रॉन्ग. इट शुड बी रिटन व्हाट इज योर सेक्स. मेडिकली स्पीकिंग, इट इज योर सेक्स. व्हेन यू से यू आर अ मेल और अ फीमेल, दे आर टॉकिंग अबाउट योर सेक्स. तो अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरीज क्या है जेंडर इनइक्वालिटी पे. दिस इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड स्टडी टॉपिक इन सोशियोलॉजी एज सच, इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी. इस पे बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी धारणाएं जो समाज में है, उनको ब्रेक करने के लिए दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च फॉर सोशियोलॉजिस्ट. तो इसमें थ्योरीज देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थ्योरी है वेरी ओल्ड थ्योरी, वन ऑफ अर्ली सोशियोलॉजिस्ट्स. जो हमारे 6 थिंकर्स दिए हुए हैं सोशियोलॉजी ऑप्शन में, उसमें एक थिंकर है टैलकट पार्सन्स. टैलकट पार्सन से पहले एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जॉर्ज मर्डॉक. तो जॉर्ज मर्डॉक नाम का एक इंसान, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, 1800s की बात हो रही है. what he says is, so he is basically an anthropologist. Anthropologists क्या करते हैं? They try to find the reasons in the biology. बायोलॉजी से लिंक करते हैं. तो ये भी यही करेगा कि जो भी जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी है, दैट मेल आर सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क एंड फीमेल आर सपोज टू डू सॉफ्ट वर्क, तो वो बोलते हैं दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरल डिफरेंसेस. सीधी सीधी सी बात है. ही सेज कि भाई विमेन की बॉडी इज डिफरेंट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी करी, उन्होंने पाया कि भाई जो मेल है एंड जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी it attracts fat more because the body is made to reproduce, the body is made to bear a child. तो हमारी जो फीमेल बॉडी है ये it gains fat easily. ठीक है, then because we have to bear child, we are the posture, जो skeletal posture है women का, that is made to sit, that is way more comfortable for a sedentary lifestyle. तो उन्होंने बोला कि देखो बायोलॉजी ने ही प्रूव कर दिया कि फैट अट्रैक्ट करती है ये बॉडी. ठीक है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के लिए बनी नहीं है. सिटिंग पोस्चर जो है हमारे स्केलेटन का, दैट फेवर्स अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सेडेंटरी मतलब सिटिंग लाइफस्टाइल, एक ही जगह बैठे रहो, घर के अंदर पड़े रहो. तो दैट इज व्हाई ही सेड कि फीमेल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट प्लेस. घर का काम करो. एंड मेल्स आर मस्क्यूलर, टेस्टोस्टेरोन है इनमें, एंड इनकी बॉडी ज्यादा मस्क्यूलर होती है. इट इज वेरी इजी फॉर देम टू लूज वेट. देयर बॉडी हॉर्मोन्स आर सच दैट दे डू नॉट अट्रैक्ट फैट. इनका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा फास्ट होता है, तो दे आर सपोज टू बी मोर एजाइल.
कि बाहर का काम, ज्यादा भारी काम जो करना है, ठीक है, लकड़ियां उठाने का या पत्थर उठाने का, वो सब काम मेल बॉडी, बिकॉज इट इज स्ट्रोंगर देन फीमेल बॉडी, तो दिस इज द नेचुरल डिफरेंसेस की बात करी जॉर्ज मर्डॉक ने कि नेचुरल डिफरेंसेस जस्टिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क बेस्ड ऑन योर सेक्सेस। तो उन्होंने तो बिल्कुल लॉजिकली साइंटिफिकली जस्टिफाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव थ्योरी। कंजर्वेटिव थ्योरी, ठीक है, सबसे पहली जो थ्योरी आई थी कि भाई जस्टिफाई कर दिया उन्होंने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिर एक और थिंकर, वो भी फंक्शनलिस्ट थॉट भी इसको बोलते हैं। फंक्शनलिस्ट मतलब कि दे विल जस्टिफाई कि मेल को जो बाहर का काम करना चाहिए, फीमेल को घर का काम करना चाहिए, कंजर्वेटिव थिंकिंग, एंड दे विल स्टे कि ये जो डिस डिविजन ऑफ वर्क, काम किस जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे आपने जो डिवीजन ऑफ वर्क करी है, काम किसको कैसे करना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर करी है, दिस लिंक्ड इट, दे लिंक्ड इट टू द बायोलॉजी। ये है हमारा फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। दे विल, फंक्शनलिस्ट मतलब क्या होता है कि नेचर के नेचुरल डिफरेंसेस के बेसिस पे जो भी डिवीजन ऑफ वर्क करी है उसका एक फंक्शन है सोसाइटी में, वो काम करती है इसलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। तो दे विल सारी पॉजिटिव चीजें बता देंगे, सब जस्टिफाई कर देंगे कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। सेकेंड थिंकर फंक्शनलिस्ट के हमने जॉर्ज मर्डॉक देख लिया, फिर आते हैं टैलकॉट पार्सन्स, जो आप पढ़ोगे भी जब आप थिंकर्स पढ़ते हो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। ये भी यही बोलते हैं कि भाई मेल जो है और फीमेल जो है उनकी अलग अलग काम होने चाहिए, बिकॉज ही सेज फीमेल्स आर वेरी एक्सप्रेसिव। ठीक है, वो एक्सप्रेसिव हैं, दे आर इमोशनल, सॉफ्ट नेचर्ड होती हैं, नर्चरिंग उनकी मदरली इंस्टिंक्ट होती है, दे शुड बी नर्चरिंग चिल्ड्रन, नर्चरिंग रोल होना चाहिए उनका। ठीक है, और मेल जो है, मेल आर इंस्ट्रूमेंटल रोल है उनका। इंस्ट्रूमेंटल मतलब बहुत ही जरूरी काम है उनका घर चलाने में, बिकॉज दे आर इंस्ट्रूमेंटल मतलब रोटी कमा के लाते हैं वो बाहर से, दे आर ब्रेड विनर्स ऑफ फैमिली। घर में रोटी कौन लेके आता है? पापा लेके आते हैं। ठीक है, तो then he went on to say that because bread winning is a very stressful job, बाहर जाना, पसीना बहाना, नौकरी ढूंढना, काम का स्ट्रेस इतना है, इट इज सच अ स्ट्रेसफुल जॉब दैट मेल का स्ट्रेस जो है that should also be handled by females nurturing expressive emotional nature, motherly nature, so they should be taking care of the stress taken by males because they go outside in the public sphere and they work. तो ये टैलकॉट पार्सन्स ने बोला, एंड इसको हम कंजर्वेटिव, इसको हम फंक्शनलिस्ट थॉट बोलते हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हो दैट फीमेल्स शुड बी लिमिटेड टू प्राइवेट स्फीयर, हाउस होल्ड तक अपने घर का काम काज करो, एंड मेल जो है उनको बाहर का काम करने दो, क्योंकि ब्रेड विनर है सोसाइटी के, और काम उसका भी स्ट्रेस आपकी फीमेल ही हैंडल करेगी। व्हेन ही कम्स बैक टू होम एट द एंड ऑफ द डे टायर्ड, देन female has to cheer him up, female has to take care of his stress also। ये बोला टैलकट पार्सन्स ने। अब इसके कंट्रास्ट में लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी थ्योरीज बहुत सारी है। दीज थ्योरीज वर हेवीली क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी सोशियोलॉजिस्ट, बोथ जॉर्ज मर्डॉक एंड बोथ टैलकट पार्सन्स। अब इनके काउंटर में बैक टू बैक थ्योरीज आती हैं जो इनको टोटली दे विल disregard whatever they gave, they will prove कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, your theories are patriarchal, it shows your sexist mindset, it shows your patriarchal mindset, you are justifying the continuing inequalities, the continuing oppression of women in society। तो इसमें फेमिनिस्ट थ्योरीज आएंगी बहुत सारी। फेमिनिस्ट थ्योरीज जो हैं इसमें मेन हम जो पढ़ेंगे,
फर्स्ट हम पढ़ेंगे लिबरल फेमिनिस्ट्स. लिबरल फेमिनिस्ट्स कम अगेंस्ट फंक्शनलिस्ट थ्योरीज. एंड ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं, ये मॉडरेटली थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि भाई आप गलत हो, बट दे आर लिबरल, थोड़े मॉडरेट से होते हैं, इतना स्ट्रांगली नहीं बोलते कि भाई ऐसे नहीं कि कोई रेवोल्यूशन ले आएंगे, विमेन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट और अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर दो, बट दे आर लाइक हाँ ग्रेजुअली चीजें शिफ्ट होनी चाहिए. तो लिबरल फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म क्या मतलब, अब फेमिनिज्म, फेमिनाजी, बहुत बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, बहुत टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट चलते हैं. लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर. जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, फेमिनिज्म का एक सिंपल मतलब है, फेमिनिज्म का कुछ और मतलब मत निकालना. फेमिनिज्म जस्ट मीन्स सोसाइटी में, एक सोसाइटी जो राइट एक मैन को दे रही है, सिर्फ राइट्स की बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं हो रही, वही सेम राइट एक वुमन को भी दे. ठीक है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है जो भी डिफरेंसेस हैं, बट इफ अ मैन इज पेड $1 फॉर स्पेसिफिक वर्क, women for the same work should also be paid $1. If a man is allowed to be an astronaut, be an IAS officer, own land, open a bank account, or inherit his father's property, women should also be given the same rights, irrespective of his her biological construction. तो बस राइट्स की बात है कि सोसाइटी जो भी राइट विमेन को देती है या मैन को देती है, वो सेम राइट विमेन को भी दे. इतनी सी बात है. दिस सिंपल इक्वेशन कंप्लीट्स योर फेमिनिज्म. तो अब लिबरल फेमिनिज्म जब आते हैं तो ये क्या बोलते हैं, व्हाट दे विल से कि भाई हम चाहते हैं, ठीक है जेंडर इनइक्वालिटी है, विमेन के साथ गलत हो रहा है, but what we should do is, the reason behind it is social and cultural attitudes. ये बोल रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम जो है ना, that is in the attitude, in the thinking of people, in the opinions of people. आप लोगों की थिंकिंग बदल दो, लोगों की कल्चरल थिंकिंग, लोगों की सोशल थिंकिंग वो बदल दो, तो अपने आप धीरे धीरे विमेन विल स्टार्ट गेटिंग इक्वल राइट्स एज मेन. तो बड़ा इन्होंने सिंपल सा सोल्यूशन निकाला कि एटीट्यूड्स में दिक्कत है. इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक वेरी फेमस स्कॉलर, इनकी बुक है द subjection of women, and this was written by him in as early as 1869 में. अब देखो वहां की सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव है. इन एज अर्ली एज 1869 जॉन स्टुअर्ट मिल ने बुक लिखी, ऐसे लिखा था, द सब्जेक्शन ऑफ women, and there he advocated, he promoted legal and political equality of rights between men and women. Both men and women should be given equal political and legal rights, and that includes the right to vote. जो उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स नहीं था, 1920s में आया है. तो 1869 में ही जॉन स्टुअर्ट मिल टॉक्ड अबाउट द राइट ऑफ women to vote. अब here we are talking about the time where women were not even allowed to open a bank account. She can only open a bank account in the name of her husband. ये हम डेवलप्ड कंट्रीज, जो आज के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी बात कर रहे हैं. इन 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, दे कुड नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज, जो हार्ड वर्क वाला काम होता है, जहाँ पसीना बहना है. दे वर गिवन ओनली सॉफ्ट पिंक जॉब्स, एंड दे वर पेड वेरी लेस. फॉर एवरी $1 in 19th century 60 cents were paid to women. ठीक है. एंड इसमें भी women were concentrated to pink jobs. पिंक जॉब्स कहने मतलब आज भी यही है कि रिसेप्शनिस्ट का काम कर लो, ठीक है, खेती में कर रहे हो तो पत्तियां तोड़ने का काम कर लो, ठीक है,
पेड़ काटने का काम मर्द करेगा, पत्तियां तोड़ने का काम विमेन करेगी. Then they did not have, of course, right to vote. They were restricted to, most of them were working in their private households. Nobody was working in a public sphere. तो ये सब चीजें जब थी इस टाइम पे, दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट कि विमेन शुड बी गेटिंग द राइट टू वोट एंड पोलिटिकल एंड लीगल राइट्स ऑफ मेन एंड विमेन शुड बी सेम. ये थे लिबरल फेमिनिज्म. बट इनका एक कॉन्ट्रास्ट, इनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने रीजन बताया जेंडर इनइक्वालिटी का इन द एटीट्यूड्स, एंड दे इग्नोर्ड कि सोसाइटी का जो ढांचा है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली दैट इज द प्रॉब्लम. द सोशल नॉर्म्स, द सोशल रूल्स, द सोशल लॉज वी फॉलो एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, प्रॉब्लम उस स्ट्रक्चर में है. तो उस स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है. एटीट्यूड्स तो एक छोटा सा पार्ट है उस स्ट्रक्चर का. तो इस स्ट्रक्चर को जब आप लेबल करोगे, मतलब इसको जब आप टारगेट करोगे, वो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है. लिबरलिज्म के बाद आता है सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट इज सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट. सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म. अब ये बोलते हैं, ये है स्ट्रॉन्ग पीपल, ये थोड़े लिबरलिज्म से थोड़े ज्यादा. अब ये बोलेंगे कि भाई प्रॉब्लम सारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में है, सोसाइटी के ताने बाने में है. सोसाइटी के रूल्स जिसने बनाए हैं वो जानबूझ के ऐसे बनाए हैं कि विमेन को ओप्रेस करो, क्योंकि विमेन को ओप्रेस करने में उनका खुद का फायदा है, मेल्स का खुद का फायदा है. एंड हियर दे विल लिंक एवरीथिंग टू कैपिटलिज्म. ये समझने से पहले हम कैपिटलिज्म थोड़ा समझ लेते हैं. अभी तक मैंने आपको काफी लेक्चर्स में क्लियर कर दिया है, बट कैपिटलिज्म जस्ट मीन्स मोटा मोटा कि यू ओन, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप लैंड ओन करते हो, आप मशीनरी ओन करते हो, आप उसके ऊपर बनी बिल्डिंग ओन करते हो, उसमें जो बिजली एसी सब लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई वो ओन करते हो, एंड आप उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रही लेबर को भी ओन करते हो. लेबर को सैलरी कितनी देनी है, कितने दिन की छुट्टी देनी है, कितने घंटे काम कराना है उससे, ये सब चीजें आप डिसाइड कर रहे हो एज बिजनेस ओनर. देन यू आर अ कैपिटलिस्ट. आप कैपिटलिस्ट हो. कैपिटल मतलब क्या होता है? जो भी मटेरियल चीजें हैं जो कि प्रोडक्शन में लग रही हैं, द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उसकी बात होती है. द फोर्सेस मतलब जो भी चीजें मैंने आपको गिनाई ये प्रोडक्शन में लग रही हैं, तो दीज आर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. इसको जो ओन करता है, इसको जो कंट्रोल कर रहा है, दैट बिजनेसमैन इज कैपिटलिस्ट. वो लेबर से काम करवाता है, प्रोडक्शन कर रहा है, लेबर को कम पैसे देके अपने खर्चे निकाल के जो भी वो प्रॉफिट कमाता है वो उसकी जेब में जाता है, एंड लेबर को उसका प्रॉफिट नहीं जाता है. लेबर जस्ट गेट्स द मिनिमम वेजेस, जो भी सैलरी उनकी है. तो लेबर डज नॉट बिकम रिच, द ओनर्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बिकम रिच. एंड यहां पे जब भी आप मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करोगे, दे विल ऑलवेज से, ये ट्रायंगल बनता है सोसाइटी का, दीज आर द एलिट्स एंड दीज आर दी मासेस. अब ये एलिट्स वो हैं जो ऐसी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे. एंड वो कहते हैं कि बिकॉज दे ओन द लैंड, दे ओन द लेबर, दे ओन एवरीथिंग, मटीरियल थिंग्स इन द सोसाइटी, दे रन द वर्ल्ड, दे रन द रूल्स ऑफ द सोसाइटी. इसमें मार्क्स का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है दैट द रूल, that the ideas of ruling class are the ruling ideas of society. Whatever they think, whatever they want to impose, whatever ideas they want to impose on rest of the masses, they can actually impose is because they control the forces of production, which ultimately means they control politics. Business of course has some control on politics because they control culture also, रिलीजन ऑल्सो. सोशल मीडिया में क्या फ्लोट होता है वो भी दैट इज कंट्रोल्ड अल्टीमेटली बाय पीपल हु आर रिच, द वेल्दी पीपल इन द सोसाइटी, बिजनेस टाइकून्स, कैपिटलिस्ट्स. तो इसमें जब
ये हम मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, तो ये यही बोलेंगे कि भाई सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है दैट इज कैपिटलिज्म। जो विमेन का ऑपरेशन है वो भी इसीलिए है क्योंकि उससे कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका फायदा होता है, उनके पैसे बचते हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। कैसे? दे से कैपिटलिज्म एक्चुअली promotes पेट्रियार्की। पेट्रियार्की पितृसत्तात्मक समाज, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द मेल्स। प्लॉट कहाँ खरीदना है, पैसे कहाँ खर्च करने हैं, आपके घर में कौन डिसाइड करता है? शादी कब करनी है, बच्चे करने हैं या नहीं, कितने बच्चे करने हैं, कब करने हैं, दिस इज मेनली टेकन, डिसीजंस आर टेकन बाय मेल्स, दैट इज कॉल्ड पेट्रियार्की। पेट्री मतलब मेल, आर्की मतलब अथॉरिटी या पावर कह लो इसको। तो कैपिटलिज्म प्रमोट्स पेट्रियार्की, ये यहाँ पे मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इसमें देखो दो लोग आएंगे, मार्क्स और उसका बहुत फेवरेट फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स। जैसे कृष्ण सुदामा की जोड़ी थी, वैसे मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की जोड़ी है, बिकॉज फ्रेडरिक एंगल्स इज अल्टीमेट रिच, ही हिमसेल्फ इज अ कैपिटलिस्ट, ही ओन्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज। लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स ने जेंडर इनइक्वालिटी को इस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने का काम मार्क्स से ज्यादा किया है उसने। ही डिड मोर वर्क इन हाईलाइटिंग द ऑपरेशन ऑफ वुमेन यूजिंग कैपिटलिज्म देन व्हाट मार्क्स डिड। तो मार्क्स स्कूल ऑफ थॉट है, नाम पूरा मार्क्स के नाम पे है, बट एंगल्स ने ज्यादा काम किया, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, बहुत बड़ा यूरोप का बिजनेसमैन था। तो वो बोलता है भाई पेट्रियार्की कैपिटलिज्म को तो बहुत फायदा है कि विमेन को ऑप्रेस करोगे। क्यों? अगर हम सारा लैंड, दुनिया का सारा लैंड, इफ दे आर ओन्ड बाय मेन, विमेन को देना ही नहीं है कुछ। और मेन में भी सिर्फ कैपिटलिस्ट जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो एक्चुअली में कंट्रोल करते हैं सब चीजें, उन्हीं कुछ इंडिविजुअल्स को देंगे। तो अच्छा है ना, विमेन को तो वैसे ही हम वैसे ही चाह रहे हैं कि मेन में भी सिर्फ कुछ लोगों को मिले, सिर्फ एलिट्स को मिले सारा धन दौलत, मासेस को ना मिले। तो वो तो मेन में भी एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, विमेन को तो वो और नीचे रखेंगे कि विमेन को तो पहले हटाओ सबसे। it actually promotes capitalism, it actually promotes the concentration of wealth, concentration of income, concentration of ownership of material things in society in few hands, in few elites, and sari masses including men and women ये सब नीचे रहें, they stay in our control, हम जैसा चाहेंगे सोसाइटी वैसी चले। तो कैपिटलिज्म एक्चुअली फायदा हो रहा है उनको विमेन को ऑपरेस करने में। हटाओ इनको भी, इनको लैंड की ओनरशिप नहीं देनी। ओवरऑल इन द वर्ल्ड लेस देन 20% ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय विमेन। 50% से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड लेवल पे विमेन की, बट इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वी ओन लेस देन 20%। और इंडिया में द नंबर इज इवन वर्स। इंडिया में वी ओन ओनली 14%, विमेन ओन ओनली 14% ऑफ लैंड। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में, कैपिटलिज्म प्रमोट्स पेट्रियार्की, क्योंकि उससे फायदा होता है, इट एक्चुअली बेनिफिट्स कैपिटलिस्ट दैट विमेन रिमेन अंडर देयर कंट्रोल, विमेन आर ओप्रेस्ड। सेकेंड रीजन जो है, सेकेंड रीजन जो ये बोलते हैं दे से कि भाई कंज्यूमरिज्म। कैसे? विमेन टारगेट विमेन एज कंज्यूमर, विमेन यूज मेकअप, विमेन यूज क्लोथ्स, घर के क्लोथ्स अलग हैं, बाहर के क्लोथ्स अलग हैं,
हील्स पहन ली हैं या शूज पहने हैं. विमेन ब्यूटी इंडस्ट्री में कितनी बड़ी है ब्यूटी इंडस्ट्री, आप बताओ. फॉर द सेम काइंड ऑफ हेयर कट women pays 600 rupees, a man pays 150 rupees. ठीक है. आप सेम क्रीम लो. अब मैन और वुमेन की अलग अलग क्रीम्स आ गई हैं. पहले तो मैन की एक ही क्रीम होती थी, अब आ गई है फॉर हार्ड स्किन ऑफ मैन डिफरेंट लोशंस हैं, विमेन के लिए अलग हैं. उसमें भी प्राइस डिफरेंस आप देखना. विमेन के प्रोडक्ट्स, विमेन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, द थिंग्स विच विमेन नीड as a consumer, they will be way more costlier just because they are for women, even though women earn less than men. ऐसा नहीं है कि women की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, बट स्टिल द सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है दैट वी डू वेयर बिंदी, वी डू अप्लाई लिपस्टिक, हम लगाते हैं काजल, हम लगाते हैं मस्कारा. इतने प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स विमेन के, ठीक है. दैट कैपिटलिस्ट, द बिजनेस पीपल, द इंडस्ट्रियलिस्ट, दे टारगेट विमेन के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को और हाई बढ़ाते जाओ ताकि हमारी इंडस्ट्री चलती रहे. और मेन के कहाँ है? व्हाट डू मेन डू इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी? ठीक है, क्या करते हो ज्यादा से ज्यादा? सनस्क्रीन लगा ली, लोशन लगा लिया. वी आर नॉट, मेन डू नॉट यूज अल्टीमेटली हाई एंड प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक हो गई या कॉन्टूरिंग आजकल चलती है, मस्कारा, काजल, इयररिंग्स, ज्वेलरी. लहंगा लाखों लाखों का होता है विमेन का. तो लुक एट द इंडस्ट्री. दिस इज ऑल कंज्यूमर. विमेन हैज बीन टारगेटेड एज द कंज्यूमर और उनके स्टैंडर्ड्स को हाई से हाई किया जाता है. फेयर एंड लवली की एड आप देख लो. फेयर एंड लवली की एड में विमेन को पहले अंडर कॉन्फिडेंट दिखाते हैं जस्ट बिकॉज शी इज नॉट ऑफ फेयर स्किन. शी इज नॉट कॉन्फिडेंट, शी इज नॉट एबल टू talk in her own office. फिर वो क्रीम लगा लेती है, then she gets fairer and then she gets promotion also. She is able to, you know, she is happy also, she has more friends also, and office में भी उसको she is more confident in keeping her point. तो ये सब जो चीजें हैं, these are imposed by your beauty industry, this is imposed by your media, this is imposed by your society. We as women, we can survive without makeup also, we can survive without you know jhumkas or heavy lehengas, but survival is different than आपके जो सोसाइटी में रिचुअल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज है. वी as part of the society, we also want to fit in the society. We also, like they say na, that why should men have all the fun? So we also want to be a big part of the society through beauty standards. अब ये imposed है, ये अलग बात है, ये women को समझ नहीं आता that this is sucking out of your salary which is already lesser than men. Third point एंगल्स का क्या है? थर्ड पॉइंट एंगल्स बोलते हैं अनपेड लेबर के बारे में बात करते हैं कि भाई इनकम मत दो उनको, पैसे ही मत दो. 2023 का डेटा अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी 2023, वेयर मेनी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विमेन. तब भी फॉर एवरी $1 earned by men, women get only 0.93 cents for the same work. So inequality, wage gap, this is called wage gap, it is still there. There is problem. You would through, if you have friends in your corporate, or if you read about corporate culture, you would know that sometimes we talk about something called glass ceiling. That beyond a point, the society, beyond a point, the corporation does not want you as women, they do not want you to reach a higher level. They do not want you to become CEO और CTO या MD नहीं बनना. नीचे के रोल्स पे ठीक है,
असिस्टेंट कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट भी बन गए, बट एक लेवल के ऊपर दे कांट टॉलरेट, दे कांट वर्क एज सबॉर्डिनेट्स ऑफ अ फीमेल लीडर. दिस इज कॉल्ड ग्लास सीलिंग. और जब आप पॉलिटिक्स में भी देख लो, इंडिया में एक्सेप्ट इंदिरा गांधी वी नेवर हैड एनी फीमेल प्राइम मिनिस्टर. यूएस की हिस्ट्री में तो फीमेल रही नहीं है, एटलीस्ट वी हैड वन, बट दैट वाज आल्सो बिकॉज शी वाज द डॉटर ऑफ नेहरू. फीमेल जब हिलरी क्लिंटन दिस शी स्टूड फॉर इलेक्शंस इन यूएस एंड शी लॉस्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, somebody as conservative as Donald Trump, when she lost, she talked about something called glass ceiling, that despite being so qualified, उसके और भी आप reasons बोल सकते हो, but one reason is that she is a female. ठीक है, and already before Donald Trump, the American society had a black president. So the society was already polarized, that they were not able to tolerate a black president. It is said that when Barack Obama became president, the discrimination against blacks, the discrimination against African Americans, it actually increased. People, liberal societies became more polarized. So Barack Obama did more for did less for black people than what was expected. तो सिमिलरली वो ऑलरेडी उनकी सोसाइटी केओस और डिसऑर्डर में आ चुकी थी व्हेन दे हैड अ ब्लैक प्रेसिडेंट. फिर उनको एक कंजर्वेटिव president चाहिए था just to bring stability in society. Then the second thing they could not have done, that they will bring a female, that would again be a very different thing from what they assumed of an American society. Black president बना दिया, बहुत बड़ी बात है, फीमेल को हम नहीं बनाएंगे. Let's bring back, make America great again by bringing a conservative leader, Donald Trump, who talks about America, who talks about American rights and who talks against immigrants. ठीक है, तो ये था ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट. आप यहां लिखोगे एंड यहां पे आप लिखोगे दैट हर हाउस होल्ड वर्क इज अनपेड. अनपेड है हाउस होल्ड वर्क. तो बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट कैपिटलिस्ट वांटेड, दैट इफ मेन लेबर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, इफ दे आर पेड लेस, women should be paid none, ताकि हमारा प्रॉफिट, हमारा पैसा बनता रहे. तो पैसा बचाना है, पैसा बचाने के लिए चाहे वीमेन को कम, बिल्कुल पैसा मत दो, और जो मेल्स हैं उनको कम से कम पैसा दो. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, जब वहां पे केओस आ रहा था, तब आई टोल्ड यू कि इफ अ मैन वॉज गिवन $10, 10 तो ज्यादा हो गया, लेट्स से 10 ही मान लो, इफ अ मैन वॉज गिवन $10 फॉर हिज होल डेज वर्क, for the same work a child was given $1. तो किसी ना किसी तरह बस पैसा कम कर लो. अगर मेन को कितना दे रहे हो इतना, विमेन को शायद उससे दोगे ही नहीं आप, या विमेन को $5 दोगे. द पॉइंट इज oppressing different section of society in terms of giving them lesser income is actually in favor of capitalists. बिजनेसमैन का पैसा बच रहा है. फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट लेते हैं हम. अब हम आएंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, ये भी इंटरेस्टिंग था वैसे. लेट्स कम टू रैडिकल फेमिनिज्म, एक्सट्रीम फेमिनिज्म. आज के आज रेवोल्यूशन ला दो, इक्वालिटी ला दो, मेल फीमेल बराबर. वो लोग देखे आपने जो बॉयकट किया होता है, दे ड्रेस लाइक मैन, दे डोंट वेयर मेकअप ऑल्सो, इयरिंग्स कुछ नहीं पहनते, मेकअप नहीं करते. बॉयकट किया होता है, सब बाल कटे छोटे, एंड दे डोंट वेयर विमेन अंडरगारमेंट्स ऑल्सो, ब्रा नहीं पहनते हैं. ठीक है, फ्री निपल मूवमेंट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, रशिया में चल रहा था. तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट हु वांट कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन. इसमें बहुत ही फेमस एक थिंकर है शूलामित फायरस्टोन. नाम में ही फायर है. शूलामित फायरस्टोन, शी नेवर गॉट मैरिड. उन्होंने बस में जा रही थी एक बार, बस के कंडक्टर को पीट दिया था, कुछ आर्गुमेंट हो गया था. एंड शी हैड आर्गुमेंट्स विद हर फादर ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू के वाई शुड आई बी डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क एंड वाई माई ब्रदर
is not doing the household work. तो she says कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशन अगर विमेन का कहीं होता है तो दैट इज एट वन प्लेस कॉल्ड फैमिली. फैमिली इज द मोस्ट ऑपरेसिव प्लेस फॉर विमेन. डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हमें पता ही नहीं चलता. वी थिंक रेप होते हैं, गैंग रेप्स होते हैं, एंड that too for years and years, for 5 to 10 years. The whole childhood of a girl child is spoiled because the male is part of the family. Nobody questions him. Abhi chacha hai, mama hai, and that has actually spoiled familial, respect for familial relations also. Now parents are so worried that they don't leave their female child even with their relatives. So this has changed our family relations, our social relations. तो इन्होंने बोला कि भाई फैमिली में सारी दिक्कत है, हम बाहर से तो बच जाएंगे, घर से कैसे बचेंगे. तो शी गिव्स द सजेशन कि भाई विमेन को इमेंसिपेशन चाहिए, विमेन को फ्रीडम चाहिए, तो फैमिली को खत्म करो, शादी मत करो, फैमिली मत बनाओ, फैमिली से दूर रहो. तो फैमिली का कॉन्सेप्ट, abolition of the concept of family was proposed by Shulamit Firestone. ये family is the most oppressive place for women. इसमें एक और थिंकर आती हैं सिल्विया वॉल्बी करके, और उसके पहले एक और हम थिंकर की बात कर लेते हैं. बाकी जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं दे टेल वन मोर प्रॉब्लम. वो क्या कहते हैं कि भाई मेन प्रॉब्लम, एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, जो मेल और फीमेल में जो इनइक्वालिटी है, रेडिकल फेमिनिस्ट्स बोल रहे हैं, उस पूरे की जड़ है वायलेंस. वायलेंस बिकॉज मेन कैन बी वायलेंट अगेंस्ट विमेन because they are physically stronger. So violence by men against women is the basic root cause of gender inequality. इन जनरल भी अगर आप समझो, किसी भी मेल फीमेल की भी बात छोड़ दो, दुनिया जो चल रही है हमारी, अल्टीमेटली वायलेंस इज द अल्टीमेट exertion of power by one over other. आप कुछ भी मान लो, आप कह लो कि यूएस सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड की. कुछ लोग रीजन देंगे कि बिकॉज हाँ डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है. इकोनॉमी स्ट्रांग है तो क्या, इकोनॉमी से स्ट्रांग होने से क्या होता है? इफ अ कंट्रीज इकोनॉमी इज स्ट्रांग, दैट मीन्स दे कैन स्पेंड अ लॉट ऑन डिफेंस, they can spend a lot on technology upgradation, science and tech पे, research पे. ठीक है, बट इससे क्या होगा, यहां खर्चा करने से क्या होगा? यहां खर्चा करने से हो रहा है, यू आर एबल टू डेवलप द मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स, the most advanced missiles, the most advanced equipments to fight in war. यूएस की सबसे बड़ी आर्मी है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, और जब भी कोई भी इशू होता है, वेदर ताइवान और चाइना का इशू हो गया या साउथ चाइना सी, येलो सी का इशू हो गया, तब वहां पे यूएस अपनी आर्मी, अपने शिप्स वहां डिप्लॉय कर देता है विद मिसाइल्स. ठीक है, अभी जो नेटो का केस चल रहा था, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, उसकी भी यही जड़ थी कि हैड यूक्रेन बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो, तो नेटो की जो ट्रूप्स है, नेटो की जो आर्मी है, फौज है, दैट कैन बी डिप्लॉयड ऑन यूक्रेन, जो कि रशिया के साथ जिसका बॉर्डर लगता है. तो नेटो की जो ट्रूप्स हैं उसमें जो भी मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके कुछ कुछ ट्रूप्स, कुछ कुछ फौज उसमें आती है. तो वहां पे अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनता तो यूएस की और बाकी कंट्रीज की जो नेटो में ट्रूप्स हैं वो सारी रशिया के बॉर्डर पे आती एंड रशिया को थ्रेट होता. तो आर्मी, वायलेंस, वॉर,
दिस इज द अल्टीमेट एजर्शन ऑफ पावर. किसी को पावरफुल बनना है तो कहते हैं ना, मत्स्य, व्हाट यू कॉल, लॉ ऑफ द सी, कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है. तो इसीलिए यहां भी मेल फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है, बिकॉज मेन आर मोर स्ट्रोंगर, टॉलर फिजिकली. अल्टीमेटली आप जो भी लॉज लेके आते हो, जो भी यू you नो आप थिंकिंग चेंज करने की कोशिश करते हो कि मेन शुड बी मोर सिविलाइज, दे शुड रिस्पेक्ट, वो सब अलग है. अगर मान लो आप फिर भी सब कुछ करने के बाद भी, लॉज लेके आने के बाद भी, डोमेस्टिक वायलेंस इज स्टिल गोइंग ऑन, ऑपरेशन अगेंस्ट वेमेन इज स्टिल गोइंग ऑन, आप जितने मर्जी सोशल रिफॉर्म लेके आ रहे हो मेन की मेंटालिटी चेंज करने के लिए, बट अल्टीमेटली विमेन men can exert violence against women because they are physically stronger. तो ये एक आर्गुमेंट दिया था रेडिकल फेमिनिस्ट्स ने कि भाई सिविलाइज्ड बोल लो कि हाँ भाई हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम जंगल राज तो है नहीं, ठीक है, वी हैव लॉज, वी हैव पुलिस टू प्रोटेक्ट. पुलिस का भी कॉन्सेप्ट देखो, अल्टीमेटली हम सिटीजन्स जो हैं, कितना भी आप बोलो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ द पीपल, अल्टीमेटली इफ अ सिटीजन does not go by the rules and laws of the land made by the state, तो स्टेट उसको जबरदस्ती इम्पोज कैसे करती है? ईदर थ्रू पुलिस एक्शन, ठीक है, पुलिस पहले आपसे प्यार से बात करेगी, फिर वो डंडा चलाएगी, फिर वो गोली भी चला सकती है. अफस्पा जो लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, इंसर्जेंसी जब हुई, वही हमारे लोग थे जो इंसर्जेंट बन गए, बिकॉज दोज एरियाज वर अंडर डेवलप्ड फॉर डेकेड्स. ठीक है, वायलेंस आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट आई एम टेलिंग यू द रीजंस बिहाइंड इंसर्जेंसी वाज स्टेट नेग्लेक्ट फॉर डेकेड्स. व्हेन दे टुक द रूट ऑफ वायलेंस, पुलिस ने भी वायलेंस, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट वहां पे लगाया गया, आर्मी इज कंट्रोलिंग दोस एरियाज एंड दोस पीपल फॉर डेकेड्स दे कुड हैव नॉट एक्सपीरियंस सिविल लिबर्टीज. तो यहां पे भी ये है कि अल्टीमेटली जब स्टेट को अपनी बात आपसे मनवानी है, व्हेन दे एजर्ट पावर इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म, पहले पुचकार लिया, लॉज बना लिया, अल्टीमेटली दे विल बी यूजिंग पुलिस टू मेक यू फॉलो द रूल्स, टू मेक यू फॉलो द रूल ऑफ सोसाइटी. तो पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेडिकल फेमिनिस्ट ने हाईलाइट किया है. इसके बाद हम पढ़ते हैं शुलामित फायरस्टोन इज डन, रेडिकल फेमिनिस्ट. अब हम देख लेते हैं, देयर वाज अनदर रेडिकल थिंकर, इनका नाम है सिल्विया वॉल्बी. सिल्विया वॉल्बी का बुक है एक, थियोराइजिंग पेट्रियार्की. इसमें ये बहुत खुल के बात करती हैं कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं. अब वो चीजें रिपीट भी होंगी जो शुलामित फायरस्टोन ने कहा या बाकी रेडिकल थिंकर्स ने कहा है, बट इन्होंने कुछ कुछ चीजें हम ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 1 आवर सेशन. कि भाई पेट्रियार्की कहाँ कहाँ दिखती है मेरे को सोसाइटी में. पेट्रियार्की मतलब यही है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट है, और दैट टू द अनइक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ विमेन, इट इज एक्चुअली ऑप्रेसिंग विमेन एंड मेल को एडवांटेज है. पहले उन्होंने पेट्रियार्की डिफाइन करी. फिर ये बोलते हैं कि देखो पेड वर्क एक सरकार की गवर्नमेंट स्कीम है, मनरेगा सरकारी स्कीम है, प्राइवेट सेक्टर तो छोड़ो, उसमें भी विमेन आर पेड लेस देन मेन फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क, फॉर लिफ्टिंग सेम नंबर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब अगर एक सरकारी स्कीम में ही विमेन और मेल में डिफरेंस कर दिया आपने फॉर डूइंग द सेम वर्क, देन इट इज अ सिस्टमेटिक, स्टेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में प्रॉब्लम है. यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो कि लेबर, द काइंड ऑफ जॉब्स वी गेट, जॉब्स में एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको सीधा सीधा, कि अनटिल रिसेंटली इंडिया के इंडिपेंडेंस के काफी टाइम बाद तक भी फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू बिकम ब्यूरोक्रेट्स, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज तो और भी डिफिकल्ट, कि क्योंकि they have to be unmarried for the rest of their lives if they want to become an IAS officer. So married women
बिकॉज उनके मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, तो दे कुड नॉट बी एबल टू मैनेज देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अ ब्यूरोक्रेट जॉब। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई आपको फुली डेडिकेट होना पड़ेगा, तो आपको अपनी मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटानी पड़ेंगी। ब्यूरोक्रेसी में देखो कैसे सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है। फिर कॉम्बैट रोल, डिफेंस में अभी तक कहाँ थे विमेन? इन इवन इन डिफेंस दे वर ओनली लिमिटेड टू ग्राउंड लेवल के जो उनकी ड्यूटीज होती हैं, डॉक्टर्स नर्स जो चाहिए, या सॉफ्ट जो काम होता है डिफेंस में वो। कॉम्बैट रोल, बॉर्डर पे जाके हथियार उठा के सोल्जर्स की तरह लड़ना, दैट वर नॉट अलाउड। अभी रिसेंटली हुआ है अलाउड, बट दिस इज ओनली डन इन 21st सेंचुरी। हमारे इंडिपेंडेंस के इतने टाइम बाद अब जाके ये लिबर्टीज हम विमेन को मिल रही हैं। फिर ये बात करती हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की। Why is it so that women are not expected to be muscular? मेल्स के इतने मोटे मोटे डोले दिखाते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एब्स। मेन आर एक्सपेक्टेड, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी की बात कर रहे हैं, कि मेन आर एक्सपेक्टेड टू बी टॉल, डार्क, मस्क्यूलर। विमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉल, पिटाइट, मेन से छोटी हूँ हाइट में, गोरी हूँ, और मस्क्यूलर नहीं चाहिए, पतली चाहिए। तो यू विल एक्चुअली सी विमेन in gym doing more cardio to reduce their weight, to reduce their fat, then doing strength training or working on their muscles। उनको बोलते भी हैं, उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई मस्क्यूलर नहीं होना है, यू हैव टू लुक सॉफ्ट, यू हैव टू have little fat, do not look much muscular, and this is reflected in our social media also, this is reflected in our Bollywood movies also। फिर एक और चीज वो बोलती हैं, एंड विद दिस आई विल एंड माई लेक्चर। लास्ट पॉइंट जो वो बोलती है, शी टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन का क्या मतलब है? कि विमेन आर प्रेजेंटेड फ्रॉम अ सर्टेन एंगल इन आर सोसाइटी। विमेन को कैसे, अब आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने आइटम सॉन्ग्स देखे हैं, आइटम सॉन्ग्स में what do you see, what is shown? Normally if you see an item song, first of all it will be in the setting of UP and Bihar का कोई गांव होगा, उसमें there will be a woman with exposed midriff, ठीक है, स्कर्ट एंड चोली होती है, लहंगा चोली, and that too very small and exposing most of her skin, and she'll be one woman surrounded by hundreds of males who may be of different age groups, not necessarily her own age group, older than her also, and they mostly will be intoxicated, they'll either be drinking or smoking, and they would actually, looking at her, they would actually be attracted towards her and they will be drooling over her। ठीक है, सबसे पहला जो आइटम सॉन्ग हमारे आया था, एज फार एज बैक एज आई कैन गो, हिंदू में ये आर्टिकल था आइटम सॉन्ग्स के ऊपर, कि शिल्पा शेट्टी का एक सॉन्ग आया था, दिल वालों मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, ठीक है, एंड दिस केम इन एज अर्ली एज 2011, एंड उसके बाद देवर ट्रेंड इन बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स आने लगे, एंड दैट वाज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। विमेन को एक फेयर विमेन विद फुल स्किन शो एंड सराउंडेड बाय मल्टीपल विमेन हु आर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, एंड शी इज एक्चुअली एंटरटेनिंग देम, she does not have any problem whether they're coming closer and they're drooling over her, ठीक है, and singing songs she's entertaining them। अब इससे क्या हुआ, what impact it had on the society when it's the trend of item songs started in Bollywood industry, अभी भी है, it started with शिल्पा शेट्टी, फिर बिपाशा बसु, फिर कटरीना कैफ, अब नोरा फतेही। तो ये जो ट्रेंड आया, इट एक्चुअली इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन स्पेशली हिंदी बेल्ट एरियाज, हिंदी बेल्ट स्टेट्स, स्पेशली इन यूपी एंड बिहार। वायलेंस अगेंस्ट विमेन डायरेक्टली लिंक्ड टू ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन शोन इन मीडिया। हमारा इतना बड़ा सेंसर बोर्ड है, बट दे डिड नॉट सेंसर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो this is what was pointed out by Sylvia Wolby, that when you focus on women
not as a human being, giving respect to her brain, giving respect to her other achievements, but just focusing on her physical features. You have reduced that woman to an object जिसके फिजिकल फीचर्स है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्किन है, उसकी स्किन का कलर है, उसकी फिगर है. यू हैव रिड्यूस्ड अ फुल ह्यूमन बीइंग विद फुल कैपेबिलिटीज. देखो, बायोलॉजिकली ऑल्सो इट्स बीन प्रूवन दैट ब्रेन्स ऑफ मेन एंड विमेन आर सेम. दोज हु से कि नहीं साइंटिफिक, इसका इसका तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, बायोलॉजिकली प्रूवन है that brain capacities of both the sexes are same. Fat capacity that I've told you कि fat gaining tendency होती है women body की, that is there, but brains are similar. Similarly, in one of my lectures I've told you कि biologically women have more survival instincts. When a baby, female baby is born, their immune system is way more stronger than a male baby. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बट एज फार एज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, IQ इज कंसर्न, इट इज द सेम. एंड इन दैट केस यू आर रिड्यूसिंग one sex of our society to the level of an object. तो यहाँ पे of course it will instinct, it will start violence, and this violence will actually be normalized in society because it is not questioned by anybody. Did we see any movement against item songs shown except few educated elites living in Delhi, professors and all? सोसाइटी में ऐसा कुछ मास मूवमेंट नहीं आता. विमेन मूवमेंट्स हम बहुत रेयर देखते हैं इंडियन सोसाइटी में. वी सी मूवमेंट्स, फार्मर मूवमेंट्स देख लिया, करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट देख लिया, विमेन मूवमेंट्स हम वेरी रेयरली सी. तो दिस इज वेयर आई एंड माई सेशन. जेंडर का टॉपिक था, जेंडर इनइक्वालिटी, एंड इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. So I hope I'm able to explain you all the nuances which are expected from you when you write a sociology optional answer or sociology GS answer. So this will be useful in your GS1 also and your essay also.